Assalamu alaikum, and a very good evening to all of you. Today we will discuss about the thyroid gland. If you see the beautiful structure of the thyroid gland, it is butterfly shaped. You can see here. Let me spot on the spotlight. Okay, so you can see here the butterfly shaped some beautiful structure, which is thyroid gland. वैसे तो बहुत ही एनाटमी बहुत ही डीप के अंदर जाएं तो देयर इज अ लॉट ऑफ things to discuss, but I have put some superficial points for discussing or reviewing the anatomy. So thyroid gland is situated at the neck and anatomically in front of larynx and trachea. Posteriorly, we can see at the level of fifth, sixth, seventh cervical and first thoracic vertebra. So this gland is highly vascularized gland, which weighs around 15 gram to 14. It actually varies from person to person due to the BMI. Some people are short-heighted, some people are heavy-weighted, so it varies actually. But the range is between the 15 gram and 240 gram, which is a normal range. As I've discussed, it is the butterfly in shape, which is being surrounded by the fibrous cover. And thyroid gland has two lobes either side of the trachea, which is being connected by a bridge, which is called isthmus. I mean, this is very important bridge if you go back and review all the anatomy. Histology of the thyroid gland, or you can say the microscopic structure of the thyroid gland. This is the thyroid butterfly, and if you see with the zoomed eye, you can see here some kind of follicles or some kind of dots inside the structure, which are called follicles. So thyroid gland are made up of a lot of follicles, which are basically functional units of the thyroid gland. I just made up a more closer or more, maximized view of the thyroid follicle here. You can see here, this is the thyroid follicle and this is the best functional unit of the thyroid gland. अच्छा, अगर आप इसके स्ट्रक्चर को देखोगे तो इस पे भी मैंने कोशिश की है कि इसी तरह आपको समझा सकूं कि देखें थायराइड ग्लैंड विच इज़ अ बिगर पिक्चर, तो उसके अंदर फॉलिकल्स मौजूद होते हैं जिसमें तमाम चीज़ें जिससे रिलेटेड तमाम चीज़ें फंक्शनली एक्टिव होती हैं। तो फॉलिकल्स में भी मेजर कॉन्स्टिट्यूंट आपको कोलोइड मिलता है। तो थायराइड ग्लैंड फंक्शनल यूनिट थायराइड फॉलिकल is made up of like this is the thyroid follicle, which is made up of cuboidal epithelial cells, and in between there is a major constituent which is a colloid. And inside the colloid, there is a major constituent which is the thyroglobulin. It is a protein. It is basically a glycoprotein जो कि 140 टायरोसिन अमाइनो एसिड से बना हुआ है। तो दूसरे अल्फाजों में अगर मैं बोलूँ तो दूसरे अल्फाजों में अगर मैं बोलूँ तो दिस इज अ मेजर फंक्शनल यूनिट इज ग्लाइकोप्रोटीन। दिस इज द मेन इंपॉर्टेंट फंक्शनल पार्ट। दिस thyroglobulin is very important part or important constituent or important structure of the thyroid gland inside the colloid, inside the thyroid follicle, which is the functional unit. So अच्छा, दूसरी बात यह है कि थायराइड ग्लैंड के फॉलिकल्स के दरमियान पेरा फोलिकुलर स्पेस होता है। वो उसके अंदर माइक्रोवेजल्स भी होती हैं, कैपिलरीज भी होती हैं, स्ट्रक्चर्स होती हैं जो कि इसको वेस्कुलराइज्ड बनाती हैं। अलॉन्ग विद दैट पेराफोलिकुलर सेल्स भी मौजूद होती हैं। इफ यू सी हियर, दीज आर द सी सेल्स। इट इज आल्सो कॉल्ड द सी सेल्स, एंड the function of C cells or parafollicular cells are to secrete the calcitonin, which means it actually lowers the calcium level in the blood. How we will be discussing in the parathyroid gland. Synthesis of thyroid hormone and release of thyroid hormone, it is very important topic, and you need to understand with a very focused and very concentrated mind, because the one thing which I have to share with you, that these two slides are so much important in a way that it was very difficult to collect the material over this topic or over this subtopic. Believe me, like I have gone through multiple YouTube lectures. I had to recall my fourth semester lecture, and like I have to work on that. So ये आपको कंपाइल किसी एक बुक के अंदर नहीं मिलता है, तो दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर यू गाइस, सो यू हैव टू बी वेरी कॉन्सेंट्रेट, वेरी फोकस्ड ओवर देयर। देखें, T3 और T4, दीज आर बेसिकली द थायराइड हार्मोन्स। ठीक है, अब वो कैसे बनते हैं, क्योंकि वी हैव डिस्कस कि थायराइड फॉलिकल आर द फंक्शनल यूनिट्स, सो होना भी चाहिए कि उसी के अंदर बन रहा होता है ये चीज़ें। तो सबसे पहला स्टेप जो है वो थायराइड फॉलिकल के अंदर, थायराइड फॉलिकल क्या करता है, आयोडाइड आयन को ट्रैप करता है फ्रॉम द ब्लड। कहाँ पे, इनसाइड द सिस्टोल या इनसाइड द ल्यूमेन ऑफ द थायराइड फॉलिकल। ठीक है,
कैसे करता है, क्यों करता है? देयर इज अ नीड। जब आप T3 और T4 को बोलते हैं या अगर देखते हैं तो द एनाटमिक और द केमिकल नेम ऑफ T3 और T4 आर ट्राई आयोडोटायरोसिन, टेट्रा आयोडोटायरोसिन। इट मीन्स कि आयोडीन का कहीं ना कहीं पे तो रोल है। तो T3 और T4 बनाने के लिए आयोडीन तो चाहिए, आयोडाइड आयंस तो चाहिए। ब्लड के अंदर आयोडीन आयोडीन फॉर्म में नहीं होता, आयोडाइड फॉर्म में घूम रहा होता है। तो पहला जो काम है थायराइड फॉलिकल का, वो क्या करता है, बाहर ब्लड में से मौजूद आयोडाइड आयंस हैं उनको एक्टिव ट्रांसपोर्ट यानी एनर्जी लगाकर भी अपनी तरफ खींचता है, अपनी तरफ ट्रैप करता है। इतना ट्रैप करता है कि उसकी जो कॉन्सेंट्रेशन है वो 40 टाइम्स बढ़ जाती है इनसाइड द थायराइड ग्लैंड कंपैरेटिवली टू द ब्लड। Just imagine a house or a gatekeeper who is actually standing on the gate and गली में से आयोडाइड आयंस गुजर रहे हैं, और क्योंकि हमें ज़रूरत है तो वो उन बंदों को, वो आयोडाइड आयंस को, उन बंदों को गले में से पकड़ के और अंदर जो है ना घर की तरफ धकेल रहा है या अंदर कर रहा है। तो दिस इज हाउ द मैकेनिज्म ऑफ द आयोडाइड ट्रैपिंग इज। इसको आप आयोडाइड आयोडीन पंप भी बोलते हैं। सिंथेसिस ऑफ थायराइड थायरोग्लोबुलिन, this is the second step, and I must say that simultaneously while the iodide is being trapped by the follicles, thyroglobulin भी बन रहा होता है साथ में। कैसे? वो जो फॉलिकुलर सेल्स हैं उनके अंदर प्रोटीन बन, देखें, कोई भी प्रोटीन की सिंथेसिस अगर आप रिकॉल करोगे ना सेल के अंदर, तो वी नो दैट थायरोग्लोबुलिन इज अ प्रोटीन एंड इट इज अ ग्लाइकोप्रोटीन। सो इट इज प्रोड्यूस्ड इन द, it is actually RER, rough endoplasmic reticulum, then modified in the Golgi complex and packaged into the vesicles. If you recall, these are the steps which are very familiar with us. That undergoes exocytosis, और वो वेसिकल्स बाहर एक्सोसाइटोसिस की तरफ जाती हैं और वो सेल्स में से निकलते हैं। एंड TGB वो जो थायरोग्लोबुलिन बनता है और वो रिलीज होता है ल्यूमन ऑफ द फॉलिकल्स के अंदर। तो साइमल्टेनियसली जब आयोडाइड ट्रैप हो रहा होता है, साथ साथ थायरोग्लोबुलिन की सिंथेसिस भी हो रही होती है। अच्छा, जब आयोडाइड अंदर ट्रैप हो जाता है तो उसकी ऑक्सीडेशन होती है। दिस इज द थर्ड स्टेप। तो ऑक्सीडेशन यानी दूसरे अल्फाजों में रिमूवल ऑफ द इलेक्ट्रॉन्स, इफ यू एग्री विथ मी। आयोडाइड की ऑक्सीडेशन आयोडीन में होती है बाय वन एंजाइम पर ऑक्सीडेज। नाउ यू नीड टू रिमेंबर दिस एंजाइम्स नेम, ठीक है, वेरी इंपॉर्टेंट, लाइक आपको बहुत ज़्यादा MCQs में भी आने वाला क्वेश्चन है ये। तो पर ऑक्सीडेज एक एंजाइम होता है जो कि आयोडाइड को ऑक्सीडाइज करता है आयोडीन के अंदर, बिकॉज वी नीड आयोडीन, वी डोंट नीड आयोडाइड हेयर। वाई आयोडाइड? तो हम आयोडीन को ही पकड़ते हैं, आयोडाइड को क्यों? क्योंकि ब्लड के अंदर आयोडाइड आयन होता है, आयोडीन आयन नहीं होता है। तो आयोडाइड जिस भी फॉर्म में मिलता है उसको हम ऑक्सीडाइज करते हैं अंदर फॉलिकल के अंदर बाय मीन्स ऑफ पर ऑक्सीडेज एंजाइम। और वो आयोडीन बाद में जाके टायरोसिन, अब ये टायरोसिन कहाँ से आया? एज वी हैव डिस्कस के थायरोग्लोबुलिन बन रहा था साइड साइड में, और थायरोग्लोबुलिन 140 अमाइनो एसिड्स टायरोसिन का बना हुआ है। तो टायरोसिन वहां से आया और यहाँ से आयोडीन आया, दोनों आपस में मिले, तो ये आयोडीन बाइंड हो जाता है टायरोसिन के साथ, और बाय पासिंग थ्रू द मेम्ब्रेन इनटू द ल्यूमन ऑफ फॉलिकल के ल्यूमन के अंदर ये जाके बाइंड होते हैं। और इसी स्टेप को हम बोलते हैं आयोडीनेशन ऑफ टायरोसिन, यानी टायरोसिन की आयोडीनेशन या आयोडीन का टायरोसिन के साथ मिलना, या आयोडीन टायरोसिन कपलिंग। तो आयोडीन रिएक्ट्स विद द टायरोसिन एंड फॉर्म्स थायराइड मेटाबॉलिक हार्मोन्स अंडर द एंजाइम आयोडीनेज, ठीक है। Here the enzyme who is working, it is iodinase. There was the peroxidase. You need to differentiate between these enzymes. You will be confused in the last exams. तो होता क्या है कि एक टायरोसिन आया, एक आयोडीन आया, बना दिया मोनो आयोडोटायरोसिन। फिर मोनो आयोडोटायरोसिन ने आयोडीन आयन के साथ फिर कपलिंग की और बनाया डाई आयोडोटायरोसिन। फिर मोनो आयोडोटायरोसिन ने डाई आयोडोटायरोसिन के साथ कपलिंग की और बना दिया ट्राई आयोडोटायरोसिन, इट इज T3। फिर डाई आयोडोटायरोन, दो डाई आयोडोटायरोन ने आपस में कपलिंग करके बनाया टेट्रा आयोडोटायरोसिन। एंड हेयर यू कैन गो विद T3 एंड T4, वी आर सक्सेसफुल नाउ। सो T3 T4 बन गए। अब उनके रिलीज कैसे करना है? क्योंकि T3 और T4 थायराइड फॉलिकल के ल्यूमन में बन रहे थे, तो बुक्स लिखती हैं कि इनके अंदर, क्योंकि दिस इज सम काइंड ऑफ लिक्विड मटेरियल, यू कैन इमेजिन देयर द पिनोसाइटोसिस एंड डाइजेशन ऑफ द कोलोइड मटेरियल। तो होता क्या है, ड्रॉपलेट्स ऑफ कोलोइड जिसके अंदर T3 और T4 मौजूद हैं, थायरोग्लोबुलिन मौजूद है, टायरोसिन मौजूद है, आयोडीन मौजूद है, कपलिंग मौजूद है, उनकी उनके ड्रॉपलेट्स बनते हैं। लाइक वो जो कोलोइड अंदर ल्यूमेन में मौजूद है, उनके छोटे छोटे ड्रॉपलेट्स अंदर फॉलिकुलर सेल्स खाते हैं या उनको पीते हैं, यू कैन से। सो द ड्रॉपलेट्स ऑफ कोलोइड री इंटर्स फॉलिकुलर सेल्स बाय द प्रोसेस कॉल्ड पिनोसाइटोसिस, ठीक है। और वहाँ होता क्या है, उन थायराइड फॉलिकुलर सेल्स के अंदर लाइसोसोम्स मौजूद होते हैं जो कि डाइजेशन करते हैं और उसमें से तोड़ के निकालते हैं T3 और T4। एंड दिस इज हाउ T3 T4 रिलीजेस आउट ऑफ द थायराइड ग्लैंड और थायराइड फॉलिकल्स। सो रिलीजिंग इसकी इस तरह होती है। सिक्रेशन इन द ब्लड, डेफिनेटली
which is the fifth step, and we have discussed कि secretions is all actually already in the control of hypothalamus or pituitary gland. So definitely उसके feedback mechanism पे depend करता है कि hypothalamus pituitary gland whenever you need it, it will be secreted. When you don't need it, we have released but stored, not secreted in the blood. ठीक है। अच्छा, एक और बात यह है कि जो T3 T4 हार्मोन्स हैं ये ब्लड सर्कुलेशन में हमेशा बाइंडिंग फॉर्म में या बाउंडेड फॉर्म में हमेशा रिलीज होते हैं। वो बाउंडेड बहुत सारे प्रोटीन्स के साथ बाउंड होते हैं, जैसे वन ऑफ द मोस्ट प्रोमिनेंट एंड अबंडेंट प्रोटीन देयर इज थायरोक्सिन बाइंडिंग ग्लोबुलिन। इट इज अ TBG, इट्स नॉट TGB, दैट वाज द थायरोग्लोबुलिन। TBG इज थायरोक्सिन बाइंडिंग ग्लोबुलिन। इट इज अनदर प्रोटीन जिसके साथ T3 T4 मोस्टली आपको मिलेंगे, और व्हेन देयर इज अ नीड वो उसमें से निकल के अपना अपना काम करते हैं। सो द ट्रांसपोर्ट ऑफ हार्मोन्स इनटू द ब्लड इज मोर देन 99% of transportation is in the bounded form, as I have discussed. TBG is the thyroxine binding globulin, 70% आपको T3 T4 इसके साथ मिलते हैं बाइंडिंग फॉर्म में। Some books are saying कि fewer percentage is binding with the albumin, and very little amount of the T3 T4 is binding with the thyroid binding pre-albumin. So this was very interesting, the slides of the synthesis, and I have tried to make it easier for you. Functions of thyroid hormones, you have to remember और conceptualize the things. अगर functions याद होंगे तो इससे related disorders बहुत easy हो जाते हैं किसी भी। वैसे भी अब hormones के functions को याद कर लो तो disorders mostly या तो hyper की तरफ जाते हैं, उन hormones के बढ़ जाने की वजह से होते हैं, या तो उन hormones के कम होने की वजह से होते हैं। It means कि या तो उसके functions और ज़्यादा एक्टिव हो जाएंगे, या तो वो स्लो डाउन हो जाते हैं। तो सिमिलरली इन द थायराइड हार्मोन्स, इफ वी सी द फंक्शंस ऑफ थायराइड हार्मोन, वी हैव I have just put one arrow here which is showing that everything is increasing. So thyroid hormones के functions भी कुछ इस तरह ही हैं कि वो हर चीज़ को आपको बढ़ाने की तरफ इंडिकेट करते हैं। जैसे thyroid hormones first function is BMR. It increases the BMR of all body tissues except the lungs, retina and spleen. क्यों? क्योंकि इनके basically lungs, retina, spleen and some at some extent other organs are also there, but these three organs having their own the BMR setups, and अगर ये थायराइड भी इनके अंदर इन्वॉल्वमेंट हो जाए तो बहुत ज़्यादा खतरनाक चीज़ें हो सकती हैं। सो दैट्स व्हाई जस्ट आई वाज हैविंग अ रीडिंग ऑन दैट एंड आई हैव जस्ट फाउंड दिस स्टेटमेंट कि इस तरह है। BMR बाकी तमाम टिश्यूज़ का BMR यानी बेसल मेटाबॉलिक रेट है वो बढ़ा देता है। सेल्यूलर मेटाबॉलिज्म विच इज़ वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ द एवरी हार्मोन के उसका सेल्यूलर मेटाबॉलिज्म या इम्पैक्ट क्या है। तो प्रोटीन सिंथेसिस यानी थायराइड हार्मोन प्रोटीन एनाबॉलिक है, ग्लूकोज की अपटेक को बढ़ाता है बिकॉज इट इज़ एक्चुअली द एनर्जाइजर। तो ग्लूकोज के अपटेक को जितना ज़्यादा बढ़ेगा, यानी कि जितनी ज़्यादा ग्लाइकोलाइसिस होगी, बाय द प्रोसेस ऑफ ग्लाइकोलाइसिस ग्लूकोज अपटेक होता है ना, तो इवेंचुअली इट स्टिमुलेट्स द ग्लाइकोजिनोलाइसिस, यानी ग्लाइकोजिन के तोड़ फोड़ को बढ़ाएगा और उसमें से अगेन ग्लूकोज निकलेगा। तो दिस इज हाउ दिस हार्मोन इज अगेन हाइपरग्लाइसेमिक हार्मोन। लाइपोलाइटिक हार्मोन है ये, यानी फ्री फैटी एसिड्स को फ्री करेगा फॉर द एनर्जी प्रोडक्शन। या क्योंकि एवरीथिंग इज इंक्रीजिंग, BMR इज इंक्रीजिंग, यानी यू कैन इमेजिन एवरीथिंग इज एनर्जाइजिंग देयर। तो लाइपोलाइटिक, we need energy, we need fat, so free fatty acids for the energy production. Synthesis of sodium potassium pump, yani basically this hormone, thyroid hormone, is more related to the energy than that potential things. तो सोडियम पोटेशियम पंप को भी ये स्टिमुलेट करता है, यानी वन ऑफ द फंक्शन ऑफ द थायराइड हार्मोन इज इम्पैक्टिंग ऑन द सोडियम पोटेशियम पंप। एक्चुअली एटीपेज जो एंजाइम है, दिस इज समहाउ देयर इज सम रिलेशन विद दैट एंजाइम, सो व्हिच एक्चुअली इम्पैक्ट्स ऑन द सोडियम पोटेशियम पंप। सो एक्चुअली जो है वो मतलब कॉन्सिक्वेंटली ये एनर्जीज को, या वो जो आपका इफ़ यू सी द इम्पैक्ट ऑफ सोडियम पोटेशियम पंप ऑन द नर्वस सिस्टम एंड अदर, तो एट द एंड यानी ये उस पर इम्पैक्ट बहुत अच्छा करता है। बॉडी टेम्परेचर, एज वी नो दैट कि ये कैलोरीजेनिक इफेक्ट करता है, एनर्जी प्रोडक्शन में काम करता है। तो डेफिनेटली BMR भी बढ़ेगा तो बॉडी टेम्परेचर बढ़ेगा। ठीक है। उसके बाद जो है वो सॉरी उसके बाद जो है ना कैटेकोलामाइंस का जो फंक्शंस हैं दे आर वेरी सिमिलर विद द थायराइड हार्मोन फंक्शंस। एंड एक्चुअली कैटेकोलामाइंस, इफ यू रिमेंबर द नॉरएपिनेफ्रिन, नॉरएड्रेनालिन हार्मोन्स, तो वी विल बी डिस्कसिंग इन द नेक्स्ट फ्यू टॉपिक्स। तो उनका जो फंक्शन है वो थायराइड हार्मोन्स के साथ सिमिलर है, और यू कैन से दैट इट स्टिमुलेट्स द एक्शन ऑफ कैटेकोलामाइंस। एंड एट द एंड नर्वस सिस्टम की ग्रोथ, यानी उसके टिश्यूज की ग्रोथ या मैचुरेशन के अंदर हेल्प आउट करता है, बोन ग्रोथ के अंदर में या उसकी मैचुरेशन के अंदर हेल्प आउट करता है। सो दिस इज ऑल अबाउट द फंक्शंस ऑफ थायराइड हार्मोन। Here you can see the difference between T3 and T4, which is the triiodotyrosine and tetraiodotyrosine.
सो इफ़ यू सी द डिफरेंस, मोस्ट एबंडेंट फॉर्म जो है वो आपके पास T4 है, 90% आपके पास मौजूद है, लेकिन T3 10% है। बट लेकिन एक्टिवली फिजियोलॉजिकली अगर एक्टिविटी की बात करें तो T3 इज़ मोर एक्टिव फॉर्म देन T4। क्योंकि ये मोर एक्टिव है तो डेफिनेटली मोर पोटेंट है, दिस इज लेस पोटेंट। एंड T3 इज शॉर्ट एक्टिंग, ज़्यादा एक्टिव होने की वजह से ये 1 से 3 दिन तक ही रहता है सर्कुलेशन में। जबकि जो T4 है वो लॉन्ग एक्टिंग रहता है, या इसका जो असर है वो लॉन्ग एक्टिंग है। T3 की जो बाइंडिंग कैपेसिटी है, एफिनिटी है, दैट इज विद थायरोक्सिन ग्लोबुलिन जो है वो प्रोटीन के साथ, इज 10 टाइम्स लेस देन T4, यानी आपके पास T4 ज़्यादा टाइम के लिए इसके साथ बाउंड रह सकता है। ठीक है, सो दिस वाज ऑल अबाउट द T3 एंड T4's डिफरेंस, एंड यू हैव टू रिमेंबर ऑल दीज थिंग्स बिकॉज ऑफ मोस्टली MCQs बहुत कंफ्यूजिंग आते हैं। So in the next video, we'll be discussing about the thyroid functional disorders. Stay connected.